Dear students, how are you? Sorry for interrupts. So, dear students, in previous videos we discussed endorsements and notification in a short time. So, or this note to current topic is press release. So, dear students, if you understand, if you want to understand press release, so you have to understand notification and press release. सो डी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. बोथ आर पब्लिकली अनाउंसमेंट बट देयर सेंस देयर मोटिव इज डिफरेंस. मीन्स व्हाट? डी स्टूडेंट्स, इफ यू release notification that is specific for any person and that is related to government offices and other that person. So but when we discuss about press release, that is very important resolutions. So we discuss here press release means they are important resolutions, announcements passed by the government and published in newspapers or magazines for general information or public. Such important resolutions or announcements made through daily newspapers or print media are termed as press communication or press release. They are informal communication through the service of press reporters by release of press note. देयर स्टूडेंट्स, प्रेस रिपोर्टर जो करता है, यानी जो रिपोर्टर्स होते हैं, दैट इज देयर वर्क इज टू पब्लिश एनी न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर और टीवी और एनी कम्युनिकेशन मीडियम. सो बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजोल्यूशंस होता है, एक अनाउंसमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, मैगजीन्स में पब्लिश किया जाता है. कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन होता है. जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप इस टाइम में देख रहे होंगे, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो कोविड-19 को लेकर प्रेस रिलीज ज़्यादा हो रहा है आजकल की. आप ऐसे बचें, आप ऐसे करें, आप ये करें, मास्क लगाएं, पहने, मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस को दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू. तो वो दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेस रिलीज. So dear students, you can understand with this example, this correct examples with to connect this press release. So such important resolutions or announcement made through daily. Dear student, जैसे कुछ ऐसे announcements होते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो डेली बाय डेली न्यूज़ प्रेस रिलीज किया जाता है. जैसे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक प्रेस रिलीज होता है सेंसेक्स को लेकर. सेंसेक्स कितना ग्रोथ किया, कितना डाउन गया, आप रोज देखेंगे, वो न्यूज़पेपर में रोज आएगा. जैसे आप एक और चीज देख सकते हैं प्रेस रिलीज में, आप देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस भी. और एक और चीज देख सकते हैं वेदर. ये सारी चीज पेपर में डे बाय डे आपको मिलेगा, यानी प्रेस रिलीज वो रोज होगा, मतलब पर डे ये किया जाएगा. और प्रिंट मीडिया termed as press communication, their informal communication through the service of press reporters by release. Dear students, this is not formal communication because this is informal. That is this news for every person. That is not particular person, means lower level, higher level, office related to office, related to teaching job, related to that things, anything. This is informal, but means any person can understand, or any person can get this information, what is this and what is that. This is a press release. So dear students, if you want to detail any examples, so you can see in your book page number 137. So dear students, you can understand press release. So dear students, I want to repeat once again, please concentrate on this. Press release means they are important resolutions or announcements passed by the government and published in newspapers or magazines for general information or public. Such important resolutions or announcements made through daily newspapers or print media are termed as press communication or press release. They are informal communication through the services of press reporters or by release of press note. So dear students, I hope you will be able to understand that
व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेस रिलीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन दोनों सेम है, बट देयर सेंस but both sense are not but their same means are not same, because notification passed by a particular designation, particular office, particular responsible person, but press release is not that. Press release a type of information, a type of communication that is given by all people, to how any all people can get any information with this medium. So dear students, I hope you can understand, and you, if you want to detail, if you want to understand more, so you can see in your book page number 137 in an example way. So dear students, now I continue to video. In next point is memos. So student, memos, मेमोज होता क्या है, यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, मैटर ये पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। सो आई वांट टू डिस्कस ऑन मेमोज, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड मेमो एंड इज यूज्ड फॉर इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस इन द ऑफिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसको मेमो भी कहा जाता है, और यह ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में, यानी ऑफिस, किसी भी ऑफिस के अंदर इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है उसको फॉलो करने, यानी उसमें यूज किया जाता है। These letters are written in memo simplified style and it abstains from salutation as well as complimentary clause. The memo is usually used in office for routine matter like granting of annual increments, confirmation in services, salary and leave adjustment, etc. सो डिजिटल मेमोज एक ऐसा टाइप का लेटर होता है जो किसी ऑफिस के इंटरनली और डे बाय डे में यूज किया जाता है, और ये रिटन फॉर्म में भी होता है, और इसको पर डे में यूज किया जाता है। पर डे में यूज करने का मतलब होता है दिस लेटर आर रिटन इन मेमो सिंप्लीफाइड स्टाइल एंड इट सॉल्यूशंस एज वेल एज, मींस ये रोज के डे में यूज किया जाता है। जैसे ये यूजली यूज किया जाता है किसी ऑफिस के रूटीन में, किसी मैटर को लेकर, किसी गारंटिंग को लेके, या किसी एनुअल इंक्रीमेंट की, सैलरी इंक्रीमेंट की हो, या किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सर्विस को लेकर, किसी सैलरी को लेकर, किसी के छुट्टी को लेकर, ये सारी चीज़ों को डे बाय डे हम यूज करते हैं, और इसी को इस जिस फॉर्म की जिसको हम यूज करते हैं दैट इज known as memos. So next, it is usually written by higher authorities for the purpose of sharing information. So dear students, यह एक क्या होता है कि हायर अथॉरिटी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है लोअर लेवल के लिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कॉलेजों में क्या होता है, अपने ही कॉलेजों की अगर हम बात ले लेते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट्स दैट इज नोन एज हायर अथॉरिटी, उसके द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डे बाय डे, पर डे में क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। मीन्स दैट इज ये इतनी लीव पर इतनी, ये इतना प्रिकॉशंस करना है आपको, ये करना है, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स you can see in your college, in your parents offices, so you can see, and also you can see in your books there are so many examples of memos. Means dear students, main purpose होता है memos का to share information upper level to lower level. This is the example and this is the mean. So dear students, now to continue this video, I want to next point, that is purpose of writing memorandum, that is memos, short form of memorandum, memos. Students, पर्पज क्या होता है मेमोरेंडम का, मेमोरेंडम का क्या पर्पज है, क्यों मेमोरेंडम लिखा जाता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और अब मैं आपको समझाना भी चाहूँगा कि ये इसका मतलब होता क्या है, यानी मेमोरेंडम का यूज क्यों करते हैं, मेमोरेंडम का पर्पज क्या होता है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। So now we start. Purpose of writing memorandum is to remind something important. Remind का मतलब होता है याद दिलाना। स्टूडेंट्स, जैसे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ ऐसे सूचनाएं होती हैं जो जिसको सारे पर्सन याद नहीं कर पाते हैं, तो होता क्या है कि हायर अथॉरिटी से उस न्यूज को या उस इंफॉर्मेशन को इंडिकेशन किया जाता है, मीन्स रिमाइंड किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में रिमाइंड लगा लेते हैं कि मेरा अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद बर्थडे है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है,
तो अब उसको क्या करते हैं, रिमाइंड लगाते हैं। तो आप 1-2 दिन पहले लगा लेते हैं तो आपको इंडिकेट कर देता है कि दिस इवेंट इज कमिंग, तो आप उसके नॉलेज में ले लेते हैं। तो उसी तरह मेमोज भी होता है, वो रिमाइंड करता है समथिंग, कुछ ना कुछ रिमाइंड करता है, जो रिमाइंड समथिंग जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज टू हाईलाइट, सो यू कैन सी दिस फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, टू हाईलाइट एन इवेंट और सर्कमस्टेंसेस। सो दिस इज द मेन पॉइंट। ये होता है कि मेमोज जो मेमोरेंडम होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप उस इवेंट को या उस सर्कमस्टेंसेस को हाईलाइट करते हैं। कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, तो हाईलाइट करने के लिए कोई भी इवेंट होने वाला हो, उस इवेंट को हाईलाइट करके आप उसको न्यूज़ निकालते हैं कि सारे लोग आप इन्फॉर्म किया जाता है कि मतलब कोई भी इवेंट होने वाला है। दिस इज द मीन्स ऑफ दिस। सो थर्ड इज रिकाउंट एंड इवेंट। रिकाउंट एंड इवेंट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, कि जो भी इवेंट होते हैं उसको क्या करने के लिए, रिकाउंट करने के लिए। रिकाउंट का मतलब उसको फिर से एनालिसिस करने के लिए, कि अगर आपने कोई इवेंट प्रिपेयर किया है या कोई इवेंट प्रिपेयर आपको करना है तो आप उसके लिए क्या करें, प्रिपेयर हो जाए, यानी अलर्ट करता है। टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो डी स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ मेमोरेंडम, कि आपको एक मेमोरेंडम दिया जाता है, आई मीन जैसे एक इंडिकेशन दिया जाता है कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्या करें, मेंटेन रखिए। कभी भी आपकी मेंटेन कॉपी या मेंटेन रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का एक इंडिकेशन होता है, ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। सो नेक्स्ट इज टू पास एन इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स, सो अब जो इंफॉर्मेशन होता है दैट इज क्लियर बाय हायर अथॉरिटी, सो दैट डिपार्टमेंट वांट टू शेयर their information higher level to lower level. That is the motive of memos, that is the motive of memorandum, that is the purpose of writing memorandum, means to pass an information, to flow information, to continue communication. This is the example. So dear students, if you want to see these types of examples, so you can see page number 138 in lesson number 10. I hope dear students you can understand. So our next point is, dear students, so I hope you can understand. Now our lesson number 10 is lesson number 10 finished. So now we start lesson number 11 in next video. Students, thank you. Have a nice day. Have a good day.